شہریوں کے نقل و حمل میں نمایاں بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے کورنگی کوسوے کا افتتاح کر دیا۔ پل کو عوام کے لیے کھول دیا ہے۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ثانیہ گل پلازا کے متاثرین کی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے۔ 2 ماہ کے اندر دکانداروں کا کاروبار شروع ہو جائے گا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ معیار، شفافیت اور پبلک انفراسٹرکچر منصوبے کی بروقت تکمیل۔ کورنگی کازوے کو افتتاح کے بعد عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ قیوم آباد کو کورنگی سے ملانے والے 1.5 کلومیٹر پر مشتمل کورنگی کازوے کا وزیر اعلیٰ سندھ نے افتتاح کر دیا۔ 6 ارب 13 کروڑ روپے کی لاگت سے ملیر ندی پر تعمیر ہونے والے پل کی تعمیرات جولائی 2023 کو شروع کی گئی تھی۔ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ 3 سال قبل تاجروں سے کازوے بنانے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ بارشوں کی صورت میں لانڈی کورنگی کا زمینی راستہ شہر سے کٹ جاتا تھا۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ برج بنائیں گے۔ اس کی کنسٹرکشن کا آغاز تقریباً 1.5 سال پہلے ہوا تھا۔ کچھ ڈیزائن کے ایشوز تھے، اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا، اور الحمدللہ آج یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر 1.4 کلومیٹر لمبا برج ہے۔ 6 لین کا برج ہے، 3 لین ایچ سائڈ پہ۔ 6 ارب روپے سے زیادہ اس پہ لاگت آئی ہے بنانے میں۔ وزیر اعلیٰ نے آگاہ کیا کہ سانحہ گل پلازا کے بعد حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے آئندہ کوئی سانحہ نہ ہو۔ فائر سیفٹی اور ڈیزاسٹر سیفٹی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ 6 ماہ تک شہر بھر کی عمارتوں میں ضروری انتظامات مکمل ہوں گے۔ عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں عمارت کو سیل کر دیا جائے گا۔ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے کراچی چیمبر کے ساتھ مل کر دکانداروں کی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی ہر پہلو پر تحقیقات کرے گی۔ کیمرہ مین شاہزیب رضا کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں تجاوزات کے خلاف نیو کراچی میں بڑی کارروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی کی قیادت میں آپریشن۔ 40 غیر قانونی فیکٹریاں مسمار، قبرستان کی زمین واگزار۔ بھاری مشینری کے ذریعے قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کی گئی۔ قبضہ مافیا کا پتھراؤ، پولیس نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ اسی فرید حنیف کا واگزار زمین محفوظ بنانے کے لیے مستقل اقدامات کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی فرید حنیف کی قیادت میں آپریشن کیا گیا، جس کے دوران قبرستان کی زمین پر قائم 35 سے 40 غیر قانونی فیکٹریوں کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کر کے 15 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کرا لی گئی ہیں۔ کارروائی کے دوران پولیس کی بھاری نفری اور محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیمیں موقع پر موجود رہیں۔ آپریشن کے دوران قبضہ مافیا کی جانب سے مزاحمت اور پتھراؤ بھی کیا گیا۔ گل پلازا متاثرین کی مدد کے لیے عملی اقدامات شروع۔ کراچی چیمبر نے خصوصی کیمپ قائم کر دیا ہے، جہاں اب تک 2000 سے زائد کلیمز موصول ہو چکے ہیں، جن کی جانچ پڑتال کے بعد امداد فراہم کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں گل پلازا متاثرین کی مدد کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ کراچی چیمبر نے خصوصی کیمپ قائم کر دیا ہے، جہاں اب تک 2000 سے زائد کلیمز موصول ہو چکے ہیں، جن کی جانچ پڑتال کے بعد امداد فراہم کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید دیکھیے کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ گل پلازا متاثرین کی روزگار بحال کا مشن۔ سانحے کے متاثرین کی مدد کے لیے عملی اقدامات شروع۔ کراچی چیمبر میں متاثرین کی معاونت کے لیے خصوصی کیمپ قائم۔ اب تک 2000 سے زائد کلیمز موصول ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی علی راشد اور رکن قومی اسمبلی اسد عالم نیازی نے متاثرین سے ملاقات کی۔ سٹی 21 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے علی راشد نے کہا کہ حکومت نے متاثرین کے کوائف کی جانچ پڑتال کی ذمہ داری کراچی چیمبر کو سونپی ہے، تاکہ شفاف طریقے سے حقداروں تک امداد پہنچائی جا سکے۔ ہم نے جا کے متاثرین سے بھی پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں، جو انتظام ہے سب مطمئن ہیں۔ سلک بینک کا بوتھ بھی یہاں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹس کھل سکیں، آرام سے ان کو پیسے ہم پہنچا سکیں۔ نادرا کے FRC سب چیزیں ان کی جتنی بھی ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سب چیزیں ہو سکیں، اور انشاءاللہ بہتری کی امید ہے۔ اور ہم رکن قومی اسمبلی اسد عالم نیازی نے کہا کہ پیپلز پارٹی غمزدہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے اور آج بھی متاثرین کے درمیان موجود ہے۔ اور جو خاندان اس سے متاثر ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور ذاتی حیثیت سے بھی سب لوگ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ صدر کراچی چیمبر نے یقین دہانی کروائی کہ متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، جیسے کہ MNA صاحب نے کہا، لیکن اس وقت سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور کراچی چیمبر بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ایک ایک شخص کو اس کا
जो नुकसान हुआ उसका अजाला हो। कराची चैम्बर के मुताबिक जल्द कवायफ की जांच पड़ताल के बाद मुतासिरीन की माली मदद शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से क्यों निकाला? पाकिस्तान का तहफ्फुज़ात का इजहार। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में खेलने से इनकार किया था। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। आईसीसी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है। मेगा इवेंट में पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं। यहाँ आपको बताएं, शहर कायद में पार्क्स की अबतर सूरत हाल एक बार फिर सवालिया निशान बन गई है। कुरंगी 1.5 नंबर का मंसूरा पार्क तबाही की दास्तान सुनाने लगा है। बेंचेस टूट फूट का शिकार हैं, आवारा कुत्तों के डेरे हैं और मनशियात के आदी अफराद ने पार्क को अपनी अमाज का बना लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 1.5 नंबर में कायम मंसूरा पार्क तबाही की तस्वीर पेश कर रहा है। कभी बच्चों और खानदानों की तफरी का मरकज रहने वाले इस पार्क को अब मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा चुका है। रिहायशियों के मुताबिक पार्क कई माह से बदहाली का शिकार है, जहां मंशियात के आदी अफराद ने डेरे जमा रखे हैं। झूले, बेंचेस और दीगर बुनियादी सहूलियात खत्म हो चुकी हैं, जबकि आवारा कुत्तों की मौजूदगी ने बच्चों के लिए पार्क को गैर महफूज बना दिया है। ये पार्क तकरीबन हमेशा से ऐसे ही है। जब ये बनता है तो समझ ले सिर्फ करप्शन के लिए बनता है। इसके नीचे, मट्टी के नीचे सारा मलबा पड़ा हुआ है और ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे, उन्होंने बनाया था इसको। वो 2 महीने के बाद ही जो है ना, पानी की मोटर है, बोरिंग ख़राब हो गई, पानी की मोटर बंद हो गई, बिजली आती नहीं है, फिर माली भी आना छोड़ देता है। उसके बाद यही हाल हो जाता है। फिर दोबारा हमारे यूसी नाज़िम ने इसको बनाया था, जब भी मुश्किल से 2 महीने नहीं चला। इसमें बहुत पैसा लगाया उन्होंने, बनाया, लाइटें लगाई, सब कुछ करा। फिर पानी का मसला, बिजली का मसला, बोरिंग बंद हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि टाउन चेयरमैन के नाम दरख्वास्त भी जमा कराई जा चुकी है, मगर ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पार्क की फौरी बहाली और सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। शहरियों का मुतालबा है कि मंसूरा पार्क में फौरी सफाई, सिक्योरिटी और बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम किया जाए, ताकि ये पार्क एक बार फिर खानदानों के लिए महफूज तफरीगाह बन सके। दूसरी जानिब पुरंगी टाउन सेक्टर 11E का मरकजी लिंक रोड इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत बन गया। पानी की लाइनों की मुसलसल लीकेजेस के बायस सड़क खंडर में तब्दील, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। टाउन सेक्टर 11E का मरकजी लिंक रोड शाहराह औरंगी को औरंगी नंबर 4 से मिलाता है। अहम और मसरूफ सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे और धंसी हुई सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। इलाका मकीनों के मुताबिक पानी की लाइनों में लीकेजेस के बायस रोड अपना वजूद खो चुका है। ये तो कम से कम 2-2.5-3 साल हो गए, 2-2.5-3 साल हो गए, आता ही नहीं है पानी। तो तकरीबन 3 लाइनें डाली हैं मैंने, अभी तीसरी लाइन में भी पानी नहीं आ रहा। सड़क पर औरंगी टाउन का दफ्तर और नादरा ऑफिस भी कायम है, जहां रोज़ाना सैकड़ों शहरी आते जाते हैं। खस्ताहाल सड़क के बायस शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवार आए दिन हादसात का शिकार हो रहे हैं। जब भी पानी आता है और तकरीबन यही हालत हो जाती है इस रोड की, और 10-12 साल तो हो गए हम इसी को यही देख रहे हैं। क्योंकि जब भी वो कुछ भी बनता है, यहाँ खुदाई हो जाती है, यहाँ तो पानी आ जाता है, तो यही कंडीशन होती है इन रोडों की। तो यार हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतने ज़्यादा दफ़ा बता चुके हैं, हमारी हुक्मरान से भी यही गुजारिश है कि भाई ज़रा नजर सानी करें यहाँ पे, ताकि यार ये कंडीशन सही हो। स्कूल के बच्चे भी जा रहे होते हैं यहाँ से, नमाजी हैं, ये हालत देखें, गंदा पानी है, 10 मसले। बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि यहाँ से अब बाइक लेके जाना और बड़ी ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से जारी होती है, तो हर बंदा परेशान है। मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पानी की लाइनों की मुस्तकिल मरम्मत के साथ सड़क की मयारी तामीर नौ की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शरीफाबाद में मसाइल के अनबार। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क तबाहाल, जगह जगह गड्ढों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। खुले गटर भी खतरनाक। इलाका मकीनों ने सड़क की फौरी मुरम्मत और बहाली का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं, शरीफाबाद में मसाइल के अनबार लग चुके हैं। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क तबाहाल है। जगह जगह गड्ढों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। खुले गटर भी खतरनाक हो चुके। इलाका मकीनों ने सड़क की फौरी मुरम्मत और बहाली का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में।
में सड़कों की खस्ताहाली शहरियों के लिए दर्द-ए-सर, कहीं गड्ढे तो कहीं खुले गटर, ट्रैफिक की रवानी और मामूलाते जिंदगी भी मुतासर। कराची के इलाके शरीफाबाद में सड़कें तबाह, अख्ताबाद से गरीबाबाद जाने वाला रोड खस्ताहाली का शिकार, सड़क पर गड्ढे पड़ने और खुले गटर ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने लगे। गाड़ियां और मोटरसाइकिल हिचकोले खाती गुजरती दिखाई दी। शहरियों का कहना है कि सड़क 4 साल से तबाहाल है, बड़े बड़े गड्ढे हादसा का सबब बनते हैं, एम्बुलेंस तक को गुजरने में मुश्किलात होती हैं। इन्होंने खड्डे तो करके छोड़ दिए थे, लेकिन अभी तक कोई रोड की तामीर नहीं है। कोई अगर इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो तक फंस जाती है और आए दिन हादसे होते थे। देखिए, ये तकरीबन इसको 4-5 साल हो गए हैं। एक दफ़ा इन्होंने खोदा, फिर दोबारा से खोदा इन्होंने। अब आगे इन्होंने कचरे का जो है ना डंपिंग पॉइंट भी बनाया हुआ है और उसकी वजह से जो है ना और यहाँ पे वो हो गया है बिल्कुल ख़राब सूरत हाल। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी मुरम्मत और गटरों के ढक्कन लगाए जाएं ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। बल्दिया टाउन का अहम तरीन रोड बदतरीन खस्ताहाली का शिकार हो गया। 12 नंबर रोड हब रिवर रोड का मुतबादिल और एक अहम तिजारती गुजरगाह समझा जाता है। सड़क पर गहरे गड्ढों, टूट फूट और नकारा सीवरेज निज़ाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। फुटबॉल स्टेडियम से नेवल कॉलोनी तक का सफर अजियतनाक बन चुका है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया टाउन का 12 नंबर रोड तरक्की नहीं गफलत की तस्वीर है। बल्दिया टाउन के 12 नंबर रोड जहां सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। 6 किलोमीटर तवील ये सड़क अब गड्ढों और कीचड़ में छुप गई है। इलाका मकीनों के मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरस से सड़क की तामीर नो नहीं की गई, जिसके बाइस आए रोज ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की खराबी और हादसात मामूल बन चुके हैं। सेवरेज का निजाम नाकारा होने के बाइस गटर का गंदा पानी भी सड़क पर जमा है, जिससे शदीद ताफुन फैल रहा है। गर्दो गुबार और आलूदा पानी ने इलाका मकीनों की सेहत को भी खतरे में डाल दिया। कोई सीवरेज का निजाम मिलेगा नहीं आपको, टूटा फूटा ही है और रोड तो कभी बने नहीं। मैं याद करूं तो 12-15 साल हो गए यहाँ पर कोई रोड का निजाम है ही नहीं। ताजिरों का कहना है कि सड़क की अबतर हालत के बाइस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स और खरीदार इलाके का रुख करने से कतराने लगे हैं। हादसात की शरह दुगनी हो गई। अक्सर तो ये देखा गया है कि बाइक वाले बेचारे लेडीज के साथ जा रहे होते हैं, उनके वो बाइक स्लिप हो जाती है और गिर जाती है। रिक्शे गलती हो रहे हैं और अक्सर रात में क्योंकि यहाँ लाइट का इंतजाम नहीं है तो उस ज्यादा हादसात होते हैं। इलाका मकीनों और ताजिरों ने मुतालबा किया है कि 12 नंबर रोड की फौरी तामीर नो की जाए और सेवरेज के निजाम को दुरुस्त किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं, सिविल सोसाइटी का एहतजाज और एम ए जिन्ना रोड की बंदिश के बाद शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम। आई चंद्रीगढ़ रोड, प्रेस क्लब, रीगल चौक, गवर्नर हाउस के तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मजीद इस रिपोर्ट में इंतजामिया ट्रैफिक का निजाम बेहतर करने में नाकाम। एम ए जिन्ना रोड की बंदिश और सिविल सोसाइटी के एहतजाज के बाइस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। प्रेस क्लब और फवारा चौक के अतराफ कंटेनर लगा दिए गए, जिसके बाइस सहाफियों तक को प्रेस क्लब दाखिले में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि एम ए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा आतिशदगी के बाइस मलबा उठाने और BRT के बाइस ट्रैफिक को रीगल की जानिब मोड़ दिया गया। तहाँ मुतबादल रास्ते भी शहरियों का इम्तिहान देने लगे। उधर आई चंडीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, फवारा चौक, आर्ट्स काउंसिल और अतराफ में ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम हो गया। एम ए जिन्ना रोड, सईद मंजिल, सिविल अस्पताल, सदर, रीगल चौक के अतराफ भी गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर होने पर शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। अवाम इंतजामिया पर बरस पड़े। तकरीबन 15-20 मिनट तो हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए। पहले गवर्नर हाउस रोड पे खड़ा हुआ था, वहाँ 10-15 मिनट हुए, अब यहाँ पे खड़े हुए। देखिए क्या होता है, अल्लाह खैर करे। आज तो जाम है, ठीक ठाक जाम है। आज मंडे का दिन है, शायद इसलिए क्योंकि जॉब की भी छुट्टी इसी टाइम होती है, तो एक वजह तो ये भी है। लेकिन ये कांस्टेंट है यहाँ पे ट्रैफिक का मसला। पूरे कराची में यही हाल है और बहुत परेशान है। इनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तकरीबन 1 घंटा मेरा हो गया ट्रैफिक में फंसा हुआ। तो बस हुकूमत से गुजारिश है, हुकूमत छोड़ दो या हुकूमत आवाम के हाथ में दे दो, या हम खुद ही चला लेंगे भाई एडजस्ट करके। शहरियों ने शिकवा किया कि इंतजामिया कराची का ट्रैफिक कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। मुतालबा किया कि हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस शहर का ट्रैफिक बेहतर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करें। क्या आपको बताएं, बल्दिया टाउन UC 9 में तरक्याती कामों का आगाज हो गया। सिंध हुकूमत के ताउन से बेक वक्त मोनोटेक्निक कॉलेज, ओल्ड एज शेल्टर होम और IT सेंटर की तामीर जारी है। रुकने सिंध असम्बली आसिफ मूसा का कहना है कि ये वो इक़दाम हैं जो आमतौर पर शहरियों की नज़रों से ओझल रहते हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
बल्दिया टाउन यूसी9 की किस्मत जाग उठी। अवामी रिलीफ और तरक्याती मंसूबों का आगाज। कई दिहाइयों से बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाका अब तालीम, हुनर और समाजी फलाह के मंसूबों की जानिब गामजन है। यूसी9 के चेयरमैन ज़िशान तनोली बोले, सिंध हुकूमत के ताउन से यहाँ बेक वक्त मोनोटेक्निक कॉलेज, IT सेंटर और ओल्ड एज शेल्टर होम की तामीर जारी है। ये मंसूबे नौजवानों को हुनरमंद बनाने और मोहम्मद शहरियों को बाइज्जत सहूलियात फराहम करने के लिए शुरू किए गए हैं। सामने पीर पार्क के बराबर में एक IT सेंटर जो है वो बनने जा रहा है, क्योंकि IT का दौर है, तो IT सेंटर वहाँ बन रहा है। उसी के ऊपर जो है वो ओल्ड एज होम जो है वो भी आपने दिखाया कि देखा है आपने, वो भी बन रहा है। रुकन सिंध असेंबली आसिफ मूसा के मुताबिक ये सिंध हुकूमत के वो इकदामात हैं जो अक्सर शहरियों की नज़रों से ओझल रहते हैं। चाहते हैं बल्दिया टाउन के नौजवान हुनरमंद बने और बुजुर्ग शहरियों को महफूज माहौल फराहम किया जाए। बल्दिया टाउन चूँकि एक गरीब एरिया है, यहाँ पे रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर बच्चे जो वालिदैन हैं, बच्चों की पढ़ाई के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से देखें इश्यूज़ तो हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन के मुताबिक यहाँ पर एक मोनोटेक्निक कॉलेज है, जिसको हमने अपग्रेड भी किया है, एक नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और उसमें हमने 5 फैकल्टीज भी बढ़ाई हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो बल्दिया टाउन जल्द तरक्की की नई मिसाल बन सकता है। कैमरामैन इमरान के हमराह रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीख 7 दिन रहा। नए रिकॉर्ड्स बन गए। पहली बार इंडेक्स 1,91,000 की सतह पर आ गया। तफसील काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुतहर्रिक 100 इंडेक्स ने एक दिन में 2 नफसियाती हदें उबूर कर लीं। कारोबार के दौरान इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,91,000 की सतह को उबूर कर गया और बुलंदतरीन सतह 1,91,032 रही। नए रिकॉर्ड कायम होने के बाद कारोबार मंदी पर इख्तिताम पजीर हुआ। 100 इंडेक्स 579 पॉइंट्स कमी के साथ 1,88,587 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन के मुताबिक शरह सूद में कमी की खबरों के बाद सरमायाकार मुतहर्रिक हुए। दिन के इख्तिताम पर मुनाफे की फरोख्त के बाइस मार्केट में कमी देखने में आई। जाहिर बात है, जब सिंगल डिजिट होगा आपका पॉलिसी रेट, तो जाहिर बात है जो इन्वेस्टर होगा वो बजाय बैंक में जाने के तरफ देखेगा। तो स्टॉक मार्केट इस वक्त सबसे बेस्ट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपने इस वक्त अपने हाई पे भी है और लोगों को अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर इसमें और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में कमी की खबरों पर सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी। ताहम मुनाफे की फरोख्त के बाइस मार्केट इख्तिताम पर दबाव का शिकार रही। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद कहते हैं कि रवा माली साल की दूसरी शशमाही के बाद कुछ माह में महंगाई 7% से तजावुज करेगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। तवक्कात के बरक्स स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का फैसला। महंगाई में इजाफे का अंदिया भी दे दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रवा कैलेंडर साल का पहला इजलास आज हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि शरह सूद 10.5% बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार किया कि रवा माली साल के आइंदा महीनों में महंगाई 7% से तजावुज कर सकती है। दूसरी जानिब बरामदात में 6% कमी और करंट अकाउंट खसारे के 0 से 1% के दरमियान रहेगा। सब चीज़ों को देखने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला किया है कि जो पॉलिसी रेट है उसको अभी करंट लेवल के ऊपर मेंटेन रखा जाए, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। जिसका मतलब ये है कि जो 10.5% पिछली कमेटी मीटिंग में किया था, 0.5% की रिडक्शन के बाद वो उसको इस मीटिंग में भी बरकरार रखा गया। जमील अहमद का कहना था रवा माली साल मुआशी नमूद 3.75 से 4.75% के दरमियान रहने की तवक्को है। स्टेट बैंक के ज़खायर बैरूनी कर्जों की अदायगी के बावजूद बढ़कर 16.1 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। जून 2026 तक 18 अरब डॉलर और 20 दिसंबर 2026 से पहले 20 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। हम इंशाल्लाह जिस स्पीड से चल रहे हैं तो हम इसी साल में, ये हमारा जो 2026 का साल है कैलेंडर ईयर, इसमें हम अपने रिजर्व्स को अपनी मुल्क की तारीख के हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, जो कि 20 दिसंबर से पहले 20 अरब डॉलर
20 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़्यादा हों। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया रवा माली साल 25.7 अरब डॉलर की अदायगियों में से अब तक 7 अरब डॉलर रोल ओवर हो चुके हैं और मजमूई तौर पर 12.5 अरब डॉलर रोल ओवर होने का इम्कान है। अब भी 11 अरब डॉलर की अदायगियां बाकी हैं, जिनमें से 5.7 अरब डॉलर अदा हो चुके हैं और 5.3 अरब डॉलर मजीद अदा किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। संघ हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची की जमीन पर पेट्रोल पंप कायम करने का इल्जाम। आईनी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का पेट्रोल पंप सील करने का हुक्म 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। आईनी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर से पेट्रोल पंप सील करने की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए पेट्रोल पंप बहाल करने की हिदायत कर दी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 में स्कूल के प्लॉट पर चाइना कटिंग। आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। गुलजार हिजरी मेट्रोविल में स्कूल के लिए मुख्तस प्लॉट पर कब्जे की कोशिश। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत, एंटी इंक्रोचमेंट, KDA, KMC, लैंड डिपार्टमेंट और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। यूट्यूब पर किरदार कशी और नवाब ऑफ जूनागढ़ फैमिली के खिलाफ मुबैना झूठी वीडियो बनाने का मुकदमा। जुनूबी की अदालत ने मुल्जिम मुदस्सिर खान का 28 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कम उम्र बच्चे के अगवा और कत्ल केस में मुल्जिम आदिल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुनूबी की अदालत ने रिमार्क्स दिए केस संगीन नौयत और सख्त सजा का हामिल है। मुल्जिम की रिहाई से शवाहिद मुतासिर हो सकते हैं।